Hello students, welcome to IAE. The GATE 2021 electronics paper has been over right now. So hopefully you have done good in that examination, and we have got some questions from the students who have appeared in the GATE 2021 electronics paper. From that questions we have selected some questions so that we can give the detailed solution of that. So before going to the detailed solution of the GATE 2021 electronics paper for the electronics device segment, so just we want to say that we have given some expected or most probable question series on our channel IAE, and we have seen that some of all the questions that have came in the GATE 2021 in the electronics device segment, there are 5 questions that has been came. And out of that 5 questions, 4 of the questions were in the direct pattern that we have given in the IAE channel in the most probable question segment of electronics device for the GATE 2021. So one of the questions has been came right, like it is given in the board, you can see. So let us see the questions, then we will discuss in later. So question क्या था, अब ये सारे जो questions हमारे पास आया हुआ है, ये student का memory based questions है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्फत हम लोगों के पास ये क्वेश्चंस आया हुआ है. देयर कैन बी सम स्टेटमेंट मिस्टेक्स आल्सो. सो लेट अस सी द क्वेश्चंस, बट द जीस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वाज दैट. सो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस. इट वाज गिवन दैट it is actually a MOSFET question. So this question has came in the GATE 2021, and in this question it was a N-channel silicon MOSFET with gate oxide thickness is 10 nanometer and the substrate sensitivity. What is substrate sensitivity they has given? Del Vt by del Vbs is 50 millivolt per volt. So first information that they have given us, that is the substrate sensitivity, and they have defined the substrate sensitivity as del Vt by del Vbs, and they have provided that it is 50 millivolt per volt. Now they have also given that the ये जो मेरा सबस्ट्रेट सेंसिटिविटी है, ये कौन से सबस्ट्रेट वोल्टेज पे है? एट सबस्ट्रेट वोल्टेज VBS इक्वल्स टू 2 वोल्ट. सो ये जो मेरा सबस्ट्रेट का सेंसिटिविटी है, दिस सबस्ट्रेट सेंसिटिविटी इज एट सबस्ट्रेट वोल्टेज गिवन बाय 2 वोल्ट, वेयर VT इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. सो ये VT क्या है? आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है. एंड एज्यूम दैट VBS is very much greater than Q of phi b, where Q of phi b is the separation between the Fermi energy level and the intrinsic energy level EI in the bulk, you can see. So that means they have given that they have approximated that the VBS, that is the substrate voltage or the body voltage. So the substrate voltage is very much greater than Q into phi b, where Q into phi b क्या है? ये वाला Q into phi b क्या है? This is nothing but the Fermi level minus the intrinsic energy level or EFI. They have given that, and they have also provided the Q value, the electronic charge, absolute permittivity they have given in farad per meter, and epsilon of silicon is given by 12, and epsilon of the oxide material is given by 4. And they have told to find the doping concentration of the substrate. सबस्ट्रेट का डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए. तो यहां पे पहला इंफॉर्मेशन, ये जो मेरा न्यूमेरिकल यहां पे गिवन है, जो गेट 2021 में आया हुआ है, सो इस न्यूमेरिकल मेनली इज ऑन द बॉडी इफेक्ट ऑफ द मॉस्फेट. इस टाइप का न्यूमेरिकल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल वी हैव डन इन द मोस्ट प्रोबेबल सेगमेंट of GATE 2021 for the electronics device. You can see that in our channel. So you can also see the link in the above. If you click the link, you will get that questions that we have already expected for the GATE 2021 electronics devices. So let us see that यहाँ पे जो मुझे बोला गया है कि doping concentration of the substrate. अब substrate कौन सा material होगा? यहाँ पे कौन सा चैनल है? एन चैनल मॉसफेट है. सो एन चैनल मॉसफेट अगर आपके पास है, पहला चीज एन चैनल मॉसफेट. सो एन चैनल मॉसफेट के लिए आपका सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? यू नो दैट द सबस्ट्रेट मस्ट बी
सबस्ट्रेट मस्ट बी पी टाइप, तभी तो आपका एन चैनल प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज इट इज एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। सो एन चैनल मॉसफेट के लिए आपका सबस्ट्रेट पी टाइप होना चाहिए। दैट मीन्स आपको बोला गया है कि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, इसका मतलब है ये जो सबस्ट्रेट है आपका पी टाइप है, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड द एक्सेप्टर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। एक्सेप्टर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, दैट इज Na। इस Na को वैल्यू आपको ढूंढना है, ये वाला Na वैल्यू आपको चाहिए, और ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास है। नाउ इफ यू लुक दिस इंफॉर्मेशन, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, सो इस इंफॉर्मेशन को आप अगर बहुत ही केयरफुली देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का जो पैटर्न हम लोग पहले से आपको बोल दिए थे कि इस टाइप का क्वेश्चंस आना चाहिए, हम लोग वो गिवन किए थे कि most probable segment of the electronics device for GATE 2021, if you go there you can find this question, this type of questions। यहाँ पे आपको क्या ढूंढने बोला है? Na। बट हम लोग जो वीडियो क्वेश्चंस बोले थे उसमें क्या था, कुछ अलग सा पैरामीटर वहां पे ढूंढने बोला था, बट द मेन इक्वेशन दैट वी हैव यूज्ड इन दैट केस, दैट वी हैव इन अ गिवन क्वेश्चंस, वो अलग था, सिर्फ आपका इक्वेशन सेम है यहाँ पे। सो नाउ if you look at this question or data carefully, you can see that these questions is nothing but the body effect question. That is the effect of the body voltage on the threshold voltage. So what was the equation that? The equation था आपके पास वहां पे कि the threshold voltage was VT0 plus there was a parameter called gamma, this gamma parameter, and this was multiplied with 2 phi f plus VBS, और यहां पे था माइनस रूट ओवर 2 ऑफ phi f। दिस वाज द मेन इक्वेशन दैट यू हैव टू यूज, और इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग भी एक न्यूमेरिकल बोले थे कि ये वाला यहाँ ये वाले इक्वेशन से न्यूमेरिकल आना चाहिए, वहां पे हम लोग गामा को निकाले थे। We have to find that value of gamma, but in the questions they have told you to find the value of Na। अब Na कहां पे है यहाँ पे? So ये जो गामा पैरामीटर है, this gamma parameter is called the fabrication parameter। Fabrication parameter, and this fabrication parameter is nothing but it is the ratio of root over 2q Na, ये वाला Na, यहां पे मैं कैपिटल लेटर डाल देता हूं बिकॉज यहां पे मैंने कैपिटल लेटर डाले थे, तो Na into epsilon Si, that is this one epsilon Si, in divided by आपका यहां पे आएंगे COX, that is the oxide capacitance per unit area। So this was the main formula that you have to use, ये वाले फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले को आपको यूज करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना था। सो नाउ देखिए यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन SI था, ये एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द सिलिकॉन। अब ये COX क्या है? दिस COX इज द ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, ये वाला था ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, व्हिच कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन OX डिवाइडेड बाय TOX। We can replace this COX by epsilon OX by TOX। TOX क्या था? Thickness of the oxide layer। Thickness of the oxide layer is also given, you can see 10 nanometer। Now आपका क्वेश्चन में बोला गया था कि del VT by del VBS is 50 millivolt per volt, which is called as the substrate sensitivity। So now you have to find ये जो VT इक्वेशन है, ये VT इक्वेशन में ये VT0 क्या है? VT0 is the value of the threshold voltage when the body voltage or the substrate voltage will be 0। That means this is nothing but the substrate voltage VBS, sorry, this is nothing but the threshold voltage VT when the substrate voltage is 0 volt। तभी जो मेरा threshold voltage होंगे वो है VT0। Actually this VT0 is the minimum possible threshold voltage for the MOSFET, मैंने बोला था ये। So अब देखो आपको इस वाले इक्वेशन से आपको del VT by del VBS निकालने होंगे। So let us find that।
सो इफ वी फाइंड, ये वाले इक्वेशन से मैं अगर डेल VT बाय डेल VBS करता हूं, मतलब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डेल VBS। सो डेल VBS से रिस्पेक्ट करने, ये वाला क्या है VT0 जो एक कांस्टेंट होता है, तो उसके कांस्टेंट को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो आपका 0 आएगा, पहला टर्म। नेक्स्ट यहां पे गामा पैरामीटर, एंड गामा इज दिस वन, सो गामा यहां पे हुआ, और उसके साथ यहां पे देखिए डेल VB, यहां पे VBS है। सो इसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं VBS के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, ये रूट ओवर है तो यहां पे हाफ आ जाएंगे, और 2πf प्लस VBS टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा। और ये वाला तो मेरा कांस्टेंट है 5f का मतलब है यहां पे जो 5b गिवन है वही मेरा यहां पे 5f है। सो एक्चुअली ये जो 5f गिवन है, दिस 5f इज नथिंग बट 5b। यहां पे जो 5b अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो 5b है वही आपका इक्वेशन का 5f है। सो थोड़ा सा आपका यहां पे जो टर्मिनोलॉजी है वहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट इक्वेशन सेम है। सो गामा इंटू हाफ 2πf प्लस VBS टू दी पावर हाफ माइनस 0, तो माइनस 0 मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, तो यहां पे मेरा ब्रैकेट क्लोज। सो आपके पास अभी डेल VT बाई डेल VBS का वैल्यू आ गया। नाउ डेल VT बाई डेल VBS ये तो 0। अब गामा वैल्यू क्या है, ये वाला मेरा गामा वैल्यू है। सो लेट अस पुट द गामा वैल्यू। सो इफ आई पुट द गामा वैल्यू, सो इट विल बी 2Q into NA into epsilon SI divided by COX. COX is nothing but epsilon OX by TOX. So epsilon OX by TOX, ये मेरा वैल्यू हुआ। अब इसके साथ ये वाला आएंगे, सो इनटू आपके पास हाफ, ये था आपका 2πf प्लस VBS टू दी पावर माइनस हाफ ऐसे आएंगे। अब देखो यहां पे ये भी गिवन है कि मेरा जो VBS वोल्टेज है वो Q5B से बहुत ही ज्यादा है, और आपके पास जो 5B है, ये 5B कुछ नहीं है, आपका 5F है अकॉर्डिंग टू योर नोन इक्वेशन। सो दैट मीन्स Q 5F से बहुत ज्यादा है, मतलब ये वाला जो टर्म है, ये टर्म 2πf will be very much less than VBS. So we can neglect this term. So that's why we can write that del VT by del VBS will be equals to 2Q into NA into epsilon SI divided by epsilon OX divided by TOX। उसके साथ मेरा यहाँ पे आएंगे हाफ, और ये वाला 2πf को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्योंकि VBS will be very much greater than Q into 5B, जो 5B मेरा 5F है। So that means we can write here 5VBS only to the power minus half. So ये था इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से आपको यहाँ पे रूट ओवर होंगे, यहाँ पे रूट ओवर। अब देखो आपको क्या चाहिए, NA वैल्यू चाहिए। You need the value of NA. That means from this equation you have to find the value of NA. NA वैल्यू चाहिए, तो NA वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं ये वाली इक्वेशन से। सो आई कैन राइट रूट ओवर 2Q इंटू NA इंटू एप्सिलॉन SI, इसका वैल्यू पहले निकालते हैं। सो 2Q इंटू NA इंटू एप्सिलॉन SI ये वाला है, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां पे आएगा आपका एप्सिलॉन OX डिवाइडेड बाई TOX इंटू डेल VT बाय डेल VBS, और ये 2 आपका यहां पे मल्टीप्लाई होगा। सो ये 2 इंटू ये वाला नीचे आ जाएंगे, VBS इसके नीचे आ जाएंगे, सो दैट मीन्स 1 बाई VBS टू दी पावर माइनस हाफ, ये वाला इक्वेशन आएगा। नाउ अब इस इक्वेशन को मैं, ये जो टर्म है VBS टू दी पावर माइनस हाफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऊपर ले जा सकता हूं। सो इफ आई टेक इट इन द अपवर्ड साइड देन आई कैन राइट 2Q इंटू NA एप्सिलॉन SI, यहां पे है आपका एप्सिलॉन OX डिवाइडेड बाई TOX इंटू डेल VT बाई डेल VBS इंटू 2
इंटू VBS, ये क्या है VBS टू द पावर माइनस, अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा VBS टू द पावर हाफ, ये वाला इक्वेशन आएंगे। बट आपको क्या चाहिए, Na चाहिए। सो Na चाहिए मतलब इसको आपको दोनों तरफ, दोनों साइड में आपको स्क्वायर करने पड़ेंगे। सो इफ आई डू द स्क्वायरिंग, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन राइट नाउ? सो इट विल बी 2QNA into epsilon SI, that will be equals to, मैं लिख सकता हूं यहां पे epsilon OX डिवाइडेड बाई TOX इसका स्क्वायर, उसके साथ डेल VT बाई डेल VBS का स्क्वायर, डेल VT बाई डेल VBS स्क्वायर, उसके साथ ये 2 मतलब ये 4 हो जाएंगे स्क्वायर। सो इसके साथ VBS का रूट ओवर था, उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आपके VBS आ जाएंगे यहाँ पे। So now you can see the equation. So from this equation I can find the value of Na. Na वैल्यू क्या होगा, ये 2Q इंटू एप्सिलॉन SI नीचे आ जाएंगे, सो 1/2Q इंटू एप्सिलॉन ऑफ SI, उसके साथ आपका ये वाला टर्म एप्सिलॉन OX डिवाइडेड बाई TOX होल स्क्वायर, उसके साथ आपका आएगा डेल VT बाई डेल VBS whole square into 4 VBS. So this will be the main equation for finding the value of Na. सिंपल सा आपको डेरिवेटिव करना था और Na का वैल्यू निकालने था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन को मैंने रिमेंबर करने को बोला था कि ये इक्वेशन से अभी तक गेट में कोई क्वेश्चंस आया नहीं था, बट इस साल हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, कि इस इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जो हम लोग हमारे जो चैनल है आईई का, उसमें जो एक्सपेक्टेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ईडीसी का डाले थे, उसमें ये क्वेश्चन था। सो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन दिस। सो नाउ ये जो Na वैल्यू ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए, Q वैल्यू। अब देखिए कौन सा वैल्यू गिवन है, Q वैल्यू इज गिवन, यहां पे पुट करना है एप्सिलॉन ऑफ SI। एप्सिलॉन ऑफ SI क्या था 12, तो एप्सिलॉन ऑफ SI क्या होंगे, if I write epsilon of SI, it will be the relative permittivity of SI into absolute permittivity, और absolute permittivity भी given था। Similarly आपको क्या चाहिए, epsilon of OX, so epsilon of OX is nothing but relative permittivity of OX into epsilon 0। TOX का वैल्यू क्या था, TOX का वैल्यू 10 नैनोमीटर था। देखिए थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर, सो TOX इज ऑल्सो गिवन एज 10 नैनोमीटर। सिमिलरली आपको डेल VT बाई डेल VBS का वैल्यू चाहिए, डेल VT बाई डेल VBS। सो डेल VT बाई डेल VBS का वैल्यू था 50 मिलीवोल्ट पर वोल्ट यहां पे। सो VBS का वैल्यू क्या था, VBS का वैल्यू गिवन था 2 वोल्ट। बट अब अगर ऑप्शन पे जाइएंगे, ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पे आपका Na का जो वैल्यू था वो सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर टू द पावर -3 में था, मतलब आपको सेंटीमीटर में निकालने होंगे। तो अब देखिए जहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं वो बात मैं बोल रहा हूं कि कहां पे गलती हो सकता है, कि ये जो एप्सिलॉन 0 है, इस एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या था, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू था 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर। इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर पे है और ये मीटर पे है। सो दैट मींस इट विल बी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर -2। यहां पे -2 आपको डालने होंगे, क्योंकि आपको फैराड पर सेंटीमीटर चाहिए, फैराड पर सेंटीमीटर। यहां पे गलती हो सकता है बच्चों से। सिमिलरली ये जो TOX है, इस TOX को भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में। सो TOX को भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख सकते हैं कि TOX का जो वैल्यू है वो है 10 नैनोमीटर, और इस 10 नैनोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो 10 नैनोमीटर मतलब क्या है, 10 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, -9 मीटर। अब इसको आपको सेंटीमीटर में लेकर जाना है,
तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 1 मीटर इक्वल्स टू, यहां पे आपको चाहिए सो 10 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 स्क्वायर यहां पे, सो ये आ जाएंगे मेरा सेंटीमीटर पे। अब देखो सारे वैल्यू आपके पास गिवन है, आपका Q वैल्यू गिवन था, Q वैल्यू यहां पे गिवन है, सो यहां पे आपका Q वैल्यू गिवन है। सिमिलरली एप्सिलॉन SI का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन यहां पे एप्सिलॉन R इंटू SI, एप्सिलॉन R का वैल्यू क्या है 12, सो यहां पे आपका 12 और एप्सिलॉन 0 यहां पे गिवन है, ये वाला सेंटीमीटर पे डालना होगा, और एप्सिलॉन OX ये वाला वैल्यू क्या था 4, तो यहां पे आपका वैल्यू हुआ 4 इस पार्ट का, और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या है ये वाला सेम सेंटीमीटर पे। सिमिलरली TOX का वैल्यू आपका ये वाला डालना होगा, सो डेल VT बाई डेल VBS का वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू क्या था 50 मिलीवोल्ट पर वोल्ट, ये वाले VBS का वैल्यू क्या था 2 वोल्ट। सो इफ यू अप्लाई और इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज, if you put all the values in these equations, all values are known, then you can see that the Na value जो मैंने कैलकुलेट किया है, जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बोल रहा हूं कि आपका जो वैल्यू आने वाला है ये वाले इक्वेशन से आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इज नथिंग बट 7.37 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से सेंटीमीटर टू द पावर -3। सो ये वाला आंसर आपको आने वाला था। So this option A will be the right answer. This option A will be the right answer. जो बहुत ही simple question था. If you have followed our channel, our expected questions for the EDC, then you have obviously attempted these questions and you have got the right answer. Because we have already expected that the question will come or questions is going to come from this formula. ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड था। वी हैव ऑल्सो गिवन दैट क्वेश्चंस, जहां पे इफ यू वॉच दैट देन यू कैन सी दैट इन आवर चैनल वी हैव गिवन क्वेश्चंस ऑन दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये गामा वैल्यू को मैंने ढूंढने बोला था, बट क्वेश्चन में आपको Na वैल्यू ढूंढने बोला है। द डिफरेंस इज दिस, बट द मेन इक्वेशन इज दिस वन। So right now what we are going to do in this video, we are going to take some questions, we will do the detailed analysis of some questions on the electronics and device segments. So this question that right now we are going to detail analysis, we have got these questions from the students' feedback. So we have written the questions on the blackboard, you can see that, and these questions is somewhere near to the questions that we have expected in our channel. Previously in our channel, if you are following our channel, then you can see, you will aware that we have already published some most probable questions on the electronics devices for the GATE 2021 for the electronics subject. And from that questions, one of the questions was there which was near to these questions. So let us do these questions, or let us see the questions, what is the questions that has came. So actually this was my GATE 2021 question. So let us see the question. A semiconductor is doped with a donor doping concentration of 10⁻16 atoms per centimeter cube. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास एक सेमीकंडक्टर है. So this is a semiconductor block. ये सेमीकंडक्टर ब्लॉक है. सो इस सेमीकंडक्टर ब्लॉक में क्या डोपिंग किया गया है? द डोनर डोपिंग हैज बीन डन. डोनर डोपिंग. सो डोनर डोपिंग मतलब इसके अंदर आपने एनडी को डोप किया. एनडी इज द डोनर डोपिंग. सो एनडी डोपिंग मतलब कितना डोपिंग है डाला गया है? सो 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको मैं सीसी बोल रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब. The intrinsic carrier concentration is also given 10⁻10 per centimeter cube. So यहाँ पे आपका intrinsic carrier concentration भी given है, जो मेरा 10⁻10 पर cc है. The light, अब ये यहाँ पे एक स्टेज है. So ये मेरा पहला स्टेज है, ये मेरा पहला स्टेप. अब क्या है कि the light is incident on the semiconductor so that 10⁻20 number of carriers per centimeter cube per second are generated. जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगा तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे.
सो कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, कितना जनरेट होंगे 10 टू द पावर 20 कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब per second are generated and also the carrier lifetime is also given. So क्या क्या given है? So एक given है कि 10 to the power 20 carriers per centimeter cube per second generate हुआ है due to the light incident and carrier lifetime is given as, this is the carrier lifetime which is given as 10 to the power minus 4. So that means अब आपके पास carrier lifetime भी given है, that is 10 to the power minus 4 second. और इसके ऊपर आपका लाइट इंसिडेंट हुआ है, इसके ऊपर आपका लाइट इंसिडेंट हुआ है, दिस इज लाइट. अब आपको चाहिए, क्या बोला गया है कि फाइंड द एनपी प्रोडक्ट एट स्टेडी स्टेट. एंड व्हाट इज एनएनपी? एनएनपी आर द इलेक्ट्रॉन एंड द होल कंसंट्रेशन एट द स्टेडी स्टेट. सो ये जो क्वेश्चन यहां पे फ्रेम किया है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यू कैन डू दैट, because we have already done this type of problems. So now ये क्वेश्चन का आपका दो पार्ट है, दो पार्ट मैंने दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. पहला है कि विदाउट लाइट, विदाउट लाइट, लाइट इंसिडेंट होने से पहले क्या था, और आफ्टर लाइट, आफ्टर लाइट. ये दोनों सेगमेंट है. ये दोनों सेगमेंट को अगर अच्छी तरीके से आपको क्लैरिटी है तो आपके लिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था. अब देखो, आप विदाउट लाइट, विदाउट लाइट में मेरे पास Ni कितना था. सो मेरे पास जो Ni थे वो Ni का वैल्यू क्या था, Ni वैल्यू वाज गिवन एज 10 टू द पावर 10 पर सीसी. अब इसके अंदर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन किया गया है. डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब. So now you can see the doping concentration value Nd is very much greater than Ni, very much greater than Ni. So very much अगर greater than Ni है तो I can directly use the mass action law. We can use the directly mass action law. So that means without light after doping इसके अंदर इलेक्ट्रॉन concentration क्या होगा, इलेक्ट्रॉन concentration, electron concentration will be nearly equals to Nd because the doping concentration of the donor type impurity will be is very much greater than the intrinsic carrier concentration. So we can say that the electron concentration जिसको मैंने बोला n, suppose n1 बोल रहा हूं because without light मेरा पहला segment है. So n1 is equals to electron concentration without light, that will be equals to Nd and Nd value is 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब. सिमिलरली आपका होल कॉन्सेंट्रेशन P1 क्या होगा, सो होल कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू क्या होंगे, आपको मास एक्शन लॉ यहां पे अप्लाई करना चाहिए. सो मास एक्शन लॉ क्या है, दैट इज Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Nd दैट इज इक्वल्स टू N1. सो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे. सो नाउ Ni का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 10, सो 10 टू द पावर 10 into 10 to the power 10 because Ni स्क्वायर, और Nd का वैल्यू क्या है 10 to the power 16. सो अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ पे 10 to the power 20 और यहाँ पे आपका 10 to the power 16. सो अल्टीमेटली विल गेट 10 to the power 4 पर सेंटीमीटर क्यूब. सो यू कैन सी दैट द होल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 to the power 4 और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या था 10 to the power 16. होल कॉन्सेंट्रेशन वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो विथ रेस्पेक्ट टू दिस 10 to the power 16 बिकॉज यहाँ पे 10 to the power 4, यहाँ पे 10 to the power 16, बहुत ही डिफरेंस है. नाउ अब आपने लाइट यहाँ पे डाला है, तो जैसे ही आपने लाइट डाला है, जैसे ही आपने लाइट डाला इसके ऊपर, तो इसके अंदर कितने कैरियर जनरेट हुए 10 to the power 20, 10 to the power 20 कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. इतने नंबर ऑफ कैरियर्स जनरेट होंगे. कैरियर्स जनरेट होने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेवलप होंगे ना, क्योंकि लाइट जब इंसिडेंट होता है मतलब फोटोन एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है. सो फोटोन एनर्जी इंसिडेंट होंगे तो कुछ बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा. सो बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल आएंगे. सो आपका 10 to the power 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होंगे और 10 to the power 20 नंबर ऑफ होल्स भी जनरेट होगा. सो मैं लिख सकता हूं कि यहां पे ड्यू टू द लाइट इंसिडेंट, ड्यू टू लाइट क्या होगा, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे,
excess electron generated. एक्सेस इलेक्ट्रॉन जेनरेटेड जो होंगे उसका वैल्यू क्या होगा? सो इलेक्ट्रॉन एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी जेनरेट होगा और आपका सेम अमाउंट ऑफ एक्सेस होल जेनरेटेड होंगे, सेम अमाउंट होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके प्लेस में आपका होल आएंगे. सो एक्सेस इलेक्ट्रॉन जेनरेटेड विल बी एक्सेस होल जेनरेटेड. वी कैन से दैट. नाउ यहां पे आपका लाइफ टाइम भी गिवन है, लाइफ टाइम. बट यू ऑल्सो नो दैट ये जो लाइट जब गिरता है तो लाइट गिरने के बाद आपका जो जेनरेशन रेट होता है, जेनरेशन रेट गिवन है 10⁻20. सो वी कैन से दैट इसके मेजोरिटी कैरियर्स क्या है? आपका जो मेजोरिटी कैरियर्स यहां पे था दैट वाज इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या था? होल. जब आपका लाइट इंसिडेंट होगा तो होल दैट इज द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा परसेंटेज चेंज होते हैं. वी नो दैट. सो नाउ फॉर दैट केस वी नो दैट द generation rate. So generation rate, if I define the generation rate as G, so this can be defined as del P divided by tau P. We know that this is a very well known equation, generation rate. So now from this we can find the excess hole generated. What is excess hole generated? Excess hole generated will be Gn, G मतलब 10 to the power generation rate, that is 10 to the power 20. आपका tau p कितना है? Tau p is equals to 10 to the power minus 4. So 10 to the power minus 4. So it will be 10 to the power 16 per centimeter cube. Per centimeter cube. So in this way we can find the what is this? This is the excess hole generated. Similarly आपका जो excess electron generate होगा वो क्या होंगे? excess hole generation के same होंगे. So that will be 10 to the power 16 per centimeter cube also. अब steady state का मतलब क्या होगा? बहुत टाइम बाद. बहुत टाइम बाद मतलब at steady state if I calculate the total electron concentration, total electron concentration. What will be the total electron concentration? So electron concentration before the light, that is N1. So N1 plus excess electron generated after the light, so that is del N. Similarly, if I want to calculate total hole concentration, it will be P1 plus del P. सिंपल सा फॉर्मूला. सिमिलरली सो N1 का वैल्यू क्या था? N1 का वैल्यू था 10 to the power 16. सो यहां पे है 10 to the power 16 प्लस डेल N का वैल्यू क्या है? 10 to the power 16. ओके, सो वी कैन राइट इट एज 2 into 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब. ऐसे में लिख सकता हूं. सिमिलरली P1 का वैल्यू क्या था? P1 was very small, 10 to the power 4. 10 to the power 4 और del P का वैल्यू क्या है? 10 to the power 16. And now you can see that this 10 to the power 4 is very much less than 10 to the power 16. So we can approximate it as 10 to the power 16 per centimeter cube. Now what they have told to find? They have told to find the NP product. This is N, this is P. You have to multiply this. So if I do the product at steady state of N and P, so N value कितना था? 2 into 10 to the power 16, ये वाला वैल्यू था. P वैल्यू कितना था? टोटल होल कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power 16. So 10 to the power 16 यहाँ पे होंगे. So ultimately N into P product जो होगा, N into P product, so क्या आएंगे? N into P product, it will be 2 into 10 to the power 32. 2 into 10 to the power 32. और इसका यूनिट क्या था? पर सेंटीमीटर क्यूब. इसका था क्या? पर सेंटीमीटर क्यूब. सो NP प्रोडक्ट जो आएंगे दैट विल बी 1 by सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर. सो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया? 2 into 10 to the power 32. So our answer will be, आपका जो आंसर आना चाहिए according to me, so it will be 2 into 10 to the power 32 centimeter cube
स्क्वायर, सेंटीमीटर टू द पावर -3 स्क्वायर, ये वाला आंसर चाहिए था। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ये बेस था। इस टाइप का क्वेश्चंस हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में बोला था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द लाइट इंसिडेंट, same type of questions of light incident. We have already given you the most probable questions of the EDC in the GATE 2021. If you go to that playlist, you can find that. Even you can get the link of our most probable questions on the upward of the screen. On the up, you are getting a link on the screen, on the upward of the screen. Then you can click the link and you can get that questions also. So वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज होंगे, वो वैल्यू दिखा था। बट यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, किसी आपको बोला एनपी प्रोडक्ट निकालिए। सो एनपी प्रोडक्ट एट द स्टेडी स्टेट निकालिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चंस। होपफुली यू हैव डन दिस क्वेश्चन एंड यू हैव गॉट दिस आंसर 2 × 10⁻32 centimeter to the power -6. So this was a very simple and beautiful questions. Hopefully you have done this. So now we are going to take a question that has came in the GATE 2021 on the energy band diagram of the semiconductor. So the question that you can see here will not be the exact statement that was written in the GATE 2021 paper, because we have got these questions through our students. That is the memory based questions. According to the memory of the students, they have given the question. So the gist of the question is this, the question was, the non-uniformly doped p-type semiconductor has been given and it has a following energy band diagram, and the energy band diagram looks like this. This was the Fermi level, this was the EV energy level, this was the length of the semiconductor, and this gap was given as del. And they have told to find what is the electric field produced inside the semiconductor. So इस सेमीकंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होंगे, और आपके पास 4 ऑप्शन थे, 2 del by QL, 3 del by Q2 QL, C was 3 del by QL, and D was del by QL. So actually if you look at these questions very carefully, and if you have watched the most probable questions of IAE channel, then you can correlate one question with this. We have done a question in the most probable series that there was a question on the slope of the energy band diagram, and this is also the question that is a slope of the energy band diagram. So what is the questions, what is the physics behind this question? That suppose if we have a p-type semiconductor, very easy questions that is came here. So you can see that if it is a p-type semiconductor, and if this p-type semiconductor is uniformly doped, but यहाँ पे non-uniformly doped था. So let us assume that it is uniformly doped. So if it is doped uniformly, then what was the band diagram? So band diagram आपके पास होता था, ये मेरा EC energy level, this is the EV energy level, or since it is a p-type semiconductor, so the Fermi level will be near to the valence band. Now suppose if we have a electron at this EC energy level, suppose we have a electron here, and if we want to find the energy of the electron, so what will be the energy of this electron? The energy of the electron is nothing but E is equals to minus Q into V. Simple as that. V is the potential energy of this electron, and electron has negative potential energy, so minus Q into V. So from this we can say that V will be equals to 1 minus 1 by Q into E. So this is the potential energy of the electron that is situating at this EC energy level. Now what they have given? They have given non-uniformly doped. So if they have given me non-uniformly doped, so what will be the scenario? So आपके पास अभी एक p-type semiconductor है. So this is a p-type semiconductor. So let us assume that it is a p-type semiconductor. और p-type semiconductor के अंदर क्या होता है? p-type semiconductor के अंदर आपका acceptor ions होते हैं. So let us say this is acceptor ions, and it is non-uniformly doped.
सो दैट मीन्स सपोज यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है डोपिंग का, सो दैट मीन्स यहां पे मेरा 3, यहां पे मेरा 2, यहां पे 1, और इस एक्सेप्टर आयोन्स के साथ आपका एक होल भी रहेगा. सो दीज आर द होल्स, सपोज दीज आर द होल्स, ये मेरा होल्स है, उसके साथ एक एक होल्स, एक एक्सेप्टर के साथ एक होल्स. सो दीज आर द होल्स. नाउ यहां पे मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई डोपिंग यू कैन सी इन दिस साइड, एंड यहां पे मेरा लाइट डोपिंग. नाउ if you look at this diagram, so in this diagram you can see that on the right hand side of the p type semiconductor यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा हाई डोपिंग है, एंड यहाँ पे आपको लेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस होंगे रिलेटिव टू द राइट हैंड साइड. So that means we can say this right hand side of the p type semiconductor will have negative potential and this will be positive potential inside the semiconductor. मैंने बाहर से कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी नहीं किया. ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग वी हैव ऑलरेडी सीन दैट यहाँ पे आपको नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएंगे, यहाँ पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा. दिस पोटेंशियल्स आर रिलेटिव पोटेंशियल because यहाँ on the right hand side in the high doping area you will get a negative acceptor ions in a high concentration, मतलब बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्जेस कम होगा. so we can say that this side will be negative potential with respect to the left hand side. so that means इस पोजीशन पे, इस एरिया पे जो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन्स का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी वेरी वेरी हाई नेगेटिव, और इस साइड में मेरा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल है. So now if I draw the energy band diagram, what will be the energy band diagram? Generally they are flat in the uniform doping. Now मैंने क्या देखा कि ये हाई डोपिंग एरिया पे मेरा नेगेटिव पोलरिटी आ रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है. दैट मीन्स इस वाले रीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मेरा नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होंगे. सो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हायर और भी हायर नेगेटिव एनर्जी पे रहेगा. सो दैट मीन्स द ईसी एनर्जी लेवल विल बी लुकिंग राइट दिस, कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हायर नेगेटिव एनर्जी पे होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर नेगेटिव एनर्जी पे होगा. सिमिलरली यहाँ पे आपका जो वैलेंस बैंड है वो वैलेंस बैंड भी यहाँ पे टिल्ट हो जाएंगे. सो दिस इज द ईसी एनर्जी लेवल, दिस इज द ईवी एनर्जी लेवल. नाउ इस साइड में मैंने ज्यादा डोपिंग किया है, सो दैट मीन्स द फर्मी लेवल विल बी राइट नाउ कुछ इस तरीके का होगा. फर्मी लेवल आपका, फर्मी लेवल बेंड नहीं होता है. सो ये मेरा EF, फर्मी लेवल आपका बेंड नहीं होगा, ये एक्चुअली आपका इस टाइप का होगा. इस टाइप का आपका फर्मी लेवल होंगे. फर्मी लेवल विल बी कांस्टेंट. नाउ यही वाला डायग्राम आपके पास यहां पे गिवन था, सिर्फ डिफरेंस क्या था, दे हैव नॉट ड्रॉन दिस EC. ये वाला EC को ड्रॉ नहीं किया गया था, सिर्फ आपको ये वाला ड्रॉ किया गया था. आपको एज्यूम, आपको ये तो मालूम है कि EC ऐसा होता है, EV अगर ऐसा बेंड हुआ है तो EC भी बेंड होंगे, बट EF आपका फिक्स रहेगा. सो नाउ आपको समझ में आया कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम से ही यहां पे आया है, बट सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये वाला EC आपके पास गिवन नहीं है. सो नाउ we know the one relation that V is equals to minus 1 by Q into E. That is the potential energy will be minus 1 by Q into E. Another relation we also know that the electric field, that means the electric potential, आपका potential energy जो है इसके अंदर, ये potential energy आपका distance x के साथ vary हो रहा है, ये अगर x distance है, so x के साथ vary होंगे. So that means आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी होगा. So we can say that the varying electric field with the length will be equals to dv of x
by dx or with minus sign. In dx is equals to minus dv by dx. What is V? V is the potential energy. It will vary with the length. Electric field will also vary with the length. So now, if you see the value of V, I can put the value of V here. So if I put the value of V here, so what will be the equation? Ex will be minus d by dx, यहाँ पे आएगा, और Vx का वैल्यू क्या है? That is 1 by q, यहाँ पे minus sign with E. This one. So now we can find the value of this right now. अब देखो DE, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका Q आ जाएंगे. So DE by dx. So what is DE by dx? What is DE by dx? DE by dx is nothing but the slope. किसका स्लोप? ये वाले ग्राफ का स्लोप. ये वाले ग्राफ का स्लोप मतलब यहाँ पे इसका अगर मैं स्लोप निकालूं ये वाला ग्राफ का, so y by x will give us the slope because in this direction आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी. So it will be y by x, तो स्लोप क्या होगा? del by length, so del by L. So I will put that here. So that means this is the slope of the energy band diagram. Energy band diagram. That is coming from here del by L. So we can find the value of Ex. That is the electric field, the varying electric field along the length of the semiconductor will be given as 1 by Q, and dE by dx is nothing but del by L. So it will be del by L. So what is the value right now? So Ex is equals to del divided by QL. So बहुत ही simple question था ये. So आप देख सकते हैं Q del by QL will be the right answer. So if you have followed our channel, the most probable question series of the EDC, then you can find the questions there that has been drawn, that has been based on the slope of the energy band diagram. And this question is also based on the slope of the energy band diagram. So this was your answer. This is the appropriate answer that you can see right now. So this question that you can see right now on the board has came on the GATE 2021. The statements in the questions are not exactly that has been given in the questions because we have got these questions from our students and they have given these questions. So the gist of the questions is somewhat like this. So in the circuit shown in the below, MOSFET has mu n COX, that is the process parameters, 100 micrometer per volt square. Aspect ratio W by L, you know that W by L is the aspect ratio, it is given by 10, and the gate to source voltage is also given by 1 volt. Find the threshold voltage Vt such that the MOSFET is in saturation, and there is a simple diagram given of the MOSFET. So now you can see this MOSFET, इस टाइप का क्वेश्चन हमने मोस्ट प्रोबेबल का जो सीरीज हमने डाला था यहाँ पे IIE चैनल पे, वहाँ पे एक क्वेश्चन था सैचुरेशन पे अगर होगा तो मेरा प्रोसेस W by L रेशियो का वैल्यू क्या होगा. हमने वहाँ पे W by L रेशियो का वैल्यू ढूंढा था, बट यहाँ पे आपको सिर्फ क्या ढूंढना है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज. इक्वेशन सबका जो यहाँ पे चाहिए वो भी सेम होगा उस टाइप का. So if you have already seen that question, then you can analyze that this question that has came in the GATE 2021 is somewhat similar to that questions that we have expected in our channel. So let us solve that question. So now in this question you can see that in this circuit the MOSFET जो given है यहाँ पे, ये मेरा MOSFET का सर्किट है. So MOSFET को क्या बोला गया है कि MOSFET is in saturation. अगर MOSFET saturation पे चाहिए तो पहला चीज मैं डाल देता हूँ कि ये मेरा गेट है, ये मेरा गेट टर्मिनल, this is the source terminal and this is the drain terminal. So we can say that this voltage will be the VDS voltage, drain to source voltage. So now the current will come, that is the drain current will flow in this direction, that is the ID current. Now ये अगर ID करंट है, ये अगर VDS है, सो MOSFET को कहाँ पे होना चाहिए?
the MOSFET should be in the saturation region. So if the MOSFET wants to be in the saturation region, what is the condition that the drain to source voltage, ये वाला, that is the drain to source voltage should be greater than equals to the saturation VDS. इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका MOSFET saturation पे जाएगा. So now what is VDS sat? So we can say that VDS should be greater than equals to VGS minus the threshold voltage. That means gate to source potential minus threshold voltage से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका MOSFET जाएगा saturation पे. तो saturation पे जाने के लिए ये वाला condition आपको जरूर ये वाले MOSFET से satisfy होना चाहिए, तभी आप ये वाले MOSFET को saturation पे ले जा सकते हैं. So now जब सैचुरेशन, अगर इसका जो कंडीशन है VDS ग्रेटर देन इक्वल्स टू VGS माइनस VTH, ये तो कंडीशन है. तो मैं अगर यहाँ पे बोला गया है कि MOSFET इज इन सैचुरेशन, मतलब एज ऑफ द सैचुरेशन आपको लेना चाहिए. सो वी हैव टू टेक द एज ऑफ सैचुरेशन, मतलब कौन से टाइम पे जस्ट वो सैचुरेशन पे एंटर करेंगे, दैट इज द बाउंड्री वैल्यू. सो बाउंड्री वैल्यू क्या होगा सैचुरेशन रीजन के लिए VDS का, that will be equals to VGS minus VT. So अगर मेरा VGS minus VT से इक्वल हो जाएंगे, so just वो सैचुरेशन पे एंटर होगा. So now तो सैचुरेशन पे एंटर जब होंगे तो उसका सैचुरेशन करंट होगा, ये जो ड्रेन करंट है ये सैचुरेशन करंट हो जाएंगे. So we can say that the drain current will be right now the IDS, that is the drain current in saturation. So the drain current in saturation, you know the equation, that is the well known equation, that is mu n by COX W by L, और उसके साथ क्या था VGS minus VT whole square, और इसके साथ आपके था 1 plus lambda into VDS. This is a very well known equation. If you are appearing for the GATE 2021, it is expected that you will be well familiar with this equation. So in this equation, what is this lambda? Lambda was the channel length modulation parameter of this given MOSFET. Now in the question, if you see carefully the information, there is nothing information given about the channel length modulation parameter. So मैंने बोला था कि जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर का कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा तो क्या करना चाहिए, आपका ये जो लैम्डा वाला पैरामीटर है इसको 0 पुट करना होगा. You have to take by default lambda equals to 0. So if I take lambda by default equals to 0, so the equation will be IDS equals to mu n COX divided by 2 W by L VGS minus VT whole square. So this will be the equation that we will be working on. Now what is mu n COX? Mu n COX is given by 100 microampere per volt square. So we can write it as 100 microampere per volt square, और इसके साथ क्या था डिवाइडेड बाय 2. W by L का वैल्यू क्या है 10, जस्ट पुट कर दीजिए. VGS का वैल्यू क्या है, VGS is given by 1 volt, so 1 minus VT whole square. Now if I multiply this 10 with this 100, so I can say it will be 1000 microampere per volt square, और इसके साथ आपका होगा हाफ 1 माइनस VT होल स्क्वायर. अब 1000 माइक्रोएम्पियर को मिली में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं. सो इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू 1000 माइक्रोएम्पियर टू मिली एम्पियर, सो इट विल बी 1 मिली एम्पियर. सो आई कैन राइट इट एज 1, मतलब हाफ, ये वाला हाफ आ जाएंगे. सो हाफ मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, उसके साथ मेरा आएगा 1 माइनस VT होल स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ IDS. So you have got an equation for the saturation current of the MOSFET. So IDS equals to half 1 minus VT whole square, और मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर तो आपका यूनिट है ये वाले सेक्शन का. So IDS का वैल्यू आपको मिल गया. So if you have got the value of IDS, so what we can write from the VDS? यहाँ पे देखिए, अब देखिए VDS वैल्यू कहाँ से ढूंढ सकते हैं. सिंपल है कि VDS वैल्यू अगर आपको ढूंढना है तो आई कैन अप्लाई द
KVL in this loop. यहां पे KVL अप्लाई कीजिए. So if I apply KVL in that loop, it will be minus 3 volt plus 20 kilo ohm into IDS equals, और यहाँ पे प्लस VDS is equals to 0. सो ये वाले लूप में मैं अगर KVL अप्लाई करूंगा तो ये वाला इक्वेशन आएगा. सिंपल एज दैट. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ VDS. सो VDS वैल्यू क्या होगा, ये वाले 3 को इधर ले जाइए, ये वाले इसको राइट हैंड साइड पे लेकर जाइए, तो यहाँ पे आएगा 20K. और IDS का वैल्यू क्या है, ये वाला इक्वेशन से मैं IDS वैल्यू पुट कर सकता हूं. तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं हाफ, और यहाँ पे था मेरा मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, यहाँ पे था 1 माइनस VT होल स्क्वायर. अब देखो ये किलो ओम है, ये मिली एम्पियर है, किलो ओम और मिली एम्पियर मल्टीप्लाई होकर आपका मिनिमाइज हो जाएंगे. सो दैट मीन्स आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे दैट इज 3. यहाँ पे 20 किलो ओम था, यहाँ पे मिली एम्पियर, दोनों कैंसिल आउट हो जाए. सो 3 माइनस 2 से 20 को कट आउट होंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. सो 10 into 1 minus VT square. So 1 minus VT whole square. So we have got a equation that VDS value is equals to this one. We have got this value. So आपका VDS value आ गया. अब देखिए VDS value is equals to VGS minus VT. So now if I apply that equation, then I can write that VDS value is equals to VGS minus VT. अब VGS का वैल्यू क्या है, 1 माइनस VT. सो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस VT. अब VDS का वैल्यू क्या है, VDS इक्वल्स टू दिस वन. सो आई कैन राइट 3 माइनस 10 into 1 माइनस VT होल स्क्वायर. सो 1 माइनस VT होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस VT. अब देखो 1 माइनस VT को मैं यहां पे ये वाले सेक्शन को लेट अस एज्यूम दैट 1 माइनस VT इज इक्वल्स टू x. मैं एज्यूम कर रहा हूं टू सिंप्लीफाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 3 माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x. मैं लिख सकता हूं बिकॉज यहां पे 1 माइनस VT जिसको मैंने x पकड़ा हुआ है, सो x स्क्वायर हो जाएंगे. सो आई कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन एज इट कैन बी रिटन एज, इसको इधर लेके जाइए. सो आपका आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ लेट अस सॉल्यूट दिस इक्वेशन. सो इफ आई सॉल्यूट दिस इक्वेशन, व्हाट वी कैन फाइंड दैट x वैल्यू कैन बी रिटन एज माइनस b. माइनस b मतलब यहाँ पे b मतलब क्या है, 1. सो 1 माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर. सो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. ए का वैल्यू क्या है 10, सी का वैल्यू क्या है माइनस 3 बाई 2a. 2 मीन्स 2 इंटू 10. सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज दैट x विल बी इक्वल्स टू, यहां पे तो आपका माइनस 1 था और इसको आप सॉल्यूट कीजिए तो आपका यहाँ पे प्लस माइनस हुआ. सो दैट मीन्स इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 121 आ जाएंगे डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा. सो यू हैव गॉट दिस वैल्यू. सो आप इसको कैलकुलेटर पे डाल सकते हैं. कैलकुलेटर को डालने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे दैट इज 0.5 एंड माइनस 0.6. बहुत ही सिंपल था. सो नाउ ये जो x का मेरे दो वैल्यू है, दो वैल्यू है मतलब कौन सा वैल्यू मैं ले सकता हूं यहाँ पे. सो लेट अस चेक दैट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि x वैल्यू, if the x value is 0.5, so we can say that 1 minus VT, x क्या था 1 minus VT is equals to 0.5. So from this equation what will be the VT value? VT value क्या होगा यहाँ पे, VT will be 1 minus 0.5. So that means VT will be 0.5 here. So एक वैल्यू आ रहा है आपका 0.5. सिमिलरली आपका x वैल्यू अगर माइनस 0.6 अगर आप एज्यूम करते हैं ये वाले इक्वेशन से, so 1 minus VT is equals to minus
0.6. So that means आपका VT वैल्यू क्या हो जाएंगे? So 1 plus 0.6, that is 1.6. So we have got two value of the threshold. अब आपको ये क्लैरिटी देना होगा कि कौन से वैल्यू सही है, कौन से वैल्यू गलत है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन. तो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, देन आपको बोला गया था सैचुरेशन. और सैचुरेशन में क्या होना चाहिए? सैचुरेशन में आपका VDS वैल्यू VGS माइनस VT से, VGS वैल्यू माइनस VT से ज्यादा होना चाहिए. सो फॉर सैचुरेशन रीजियन व्हाट वी कैन से, फॉर सैचुरेशन रीजियन वी कैन से दैट द VGS वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू. ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सैचुरेशन रीजियन कंडीशन. अब आपका VGS वैल्यू क्या था? VGS was 1 volt. If VGS was 1 volt, then VT will be less than 1 volt. So that means the VT value should be less than 1 volt. Okay, will be less than 1 volt. So if it is less than 1 volt, then which one of the value will be true? So you can see that this value will be true. ये value आपका गलत है. So that means आपका जो आंसर आना चाहिए, that is VT is equals to 0.5 volt. So this must be the answer. 1.6 is not the correct answer. So this was a very very simple straightforward questions, and this type of questions we have already discussed in our most probable section of the IE channel. If you have seen that most probable questions of the EDC on the IE channel, then you will be very familiar with this question. So hopefully you have done this question. And thank you very much for watching the video. And if you want more videos to be seen on this channel, then subscribe the channel and press the bell icon so that whenever the new videos will be uploaded, you will get the notification. And thank you very much.